Gopal and the Hilsa Fish. It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. Hooray! Fishmongers sold nothing but Hilsa fish. Come, buy. The price of Hilsa's down today. Householders could talk of nothing but Hilsa fish. How much did you pay for that Hilsa? You wouldn't believe it if I told you. And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but Hilsa fish. Your Majesty, you should have seen the huge Hilsa I caught. It was... Stop it! Are you a courtier or a fisherman? The courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. I'm sorry I lost my temper. It is the season for Hilsa fish. And no one, not even Gopal, can stop anyone from talking about Hilsa fish. Not even for 5 minutes. Oh, I think I could, Your Majesty. Then let me see you buy a huge Hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. I accept the challenge, Your Majesty. A few days later, why is your face half-shaven? I am dressing up to buy a fish. What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? I told you, I am dressing up to buy a Hilsa fish. Listen to me. Please, you can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? How many times must I tell you, woman? I am out to buy a huge Hilsa fish. It's happened to him. He's gone mad. Gopal bought the Hilsa fish and started walking towards the palace. Mother, look at that man. Isn't he comical? He must be a madman. Hush. I think he's a mistake. When Gopal reached the court, What do you want? I want to see the king. You can't see the king. Get away with you. Gopal began to dance and sing loudly. Inside the palace, The man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. Bring that man to me at once. Yes, Your Majesty. Gopal was brought before the king. It's Gopal. The man has lost his mind. I think it's one of his crazy jokes. All right, Gopal, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? Your Majesty, you seem to have forgotten something. Forgotten something? Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. Well, Gopal, congratulations. You have achieved the impossible once again. हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? सेफ़ होंगे? क्या घर पे रहना है, सेफ़ रहना है। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं 7th क्लास की बुक हनीकॉम्ब का चैप्टर 3, जो कि है गोपाल एंड द हिल्सा फ़िश। ठीक है, एक फ़िश जिसका जो है हिल्सा, ठीक है, अलग अलग वैरायटी की फिशेस होती हैं, उनमें से हिल्सा फ़िश है और एक गोपाल है, ठीक है, एक आदमी है। तो इन दोनों के बीच में क्या स्टोरी है, क्या है ये, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही देखने में लग रहा है कि ये देख के कैसी है। कॉमिक्स पढ़ी है आपने कभी? कॉमिक्स होती है ना, उसमें जैसे होता है वैसे ये डायलॉग्स लिखे होते हैं और फ़ोटोज़ के साथ। तो ये उस तरह की कॉमिक्स के टाइप में स्टोरी लिखी है। ठीक है, तो ये है, पढ़ने में मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर रेड कॉमिक बुक? क्या कभी आपने कॉमिक बुक पढ़ी है? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। कॉमिक्स में क्या होता है भाई, पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी जो है बताई जाती है। तो वो इसी तरह से स्टोरी है जो इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके, क्या है भाई?
गोपाल एंड द हिल्सा फिश। देखो दिख रहा है एक बोट है जिसमें से फिशरमैन जो है मछुआरे वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, आपको दिख रहा है ना। क्या है भाई, इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। कि किसका सीज़न था, हिल्सा फिश का सीज़न था, ठीक है। ये सीज़न था जिसमें मछलियाँ खूब होती थी और मछुआरे उनको पकड़ते थे, ठीक है। तो ये क्या है, सीज़न है हिल्सा फिश का, और मछुआरे जो हैं वो कुड थिंक ऑफ नथिंग, कि उनको कुछ और नहीं सोच सकते थे वो, ठीक है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी और वह क्या थी, हिल्सा फिश, क्योंकि वो पकड़ के बेचेंगे कमाएंगे, ठीक है। फिश मोंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। मोंगर्स मतलब वेंडर्स, जो बेचने वाले होते हैं ना, जो ठेले लगाते हैं या दुकान पे बेचते हैं, तो मछलियाँ बेचने वाले थे वो भी कुछ और नहीं बेचते थे, सिर्फ हिल्सा फिश, ठीक है। सिर्फ हिल्सा फिश ही वो बेच रहे थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। क्या बोल रहा है भाई, ये वेंडर जो है वो, आप जाते हो ना जो सब्जी मंडी या जहाँ से भी आप निकलते हो जहाँ ये ठेले लगे होते हैं, तो वो बोलते हैं ना भाई ये, तो उसी तरह से ये बोल रहा है कि आओ ख़रीद लो, हिल्सा फिश का प्राइस जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही है तो कोई चीज़, उसका प्राइस कम हो जाता है, तो वो इस तरह से आवाज़ लगा रहा है, कम बाय, आ जाओ मछलियाँ ख़रीद लो, हिल्सा फिश का प्राइस बहुत ही कम है, ठीक है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो ग्रामीण गांव वाले लोग हैं वो भी किसी और के बारे में नहीं सोच सकते थे, ठीक है, किसी और चीज़ के बारे में ख़रीदने में, क्योंकि भाई सीज़न होता है, तो उस तरह का सिर्फ वो हिल्सा फिश के बारे में ही सोच रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। ये लेडी जो है वो उनसे पूछ रही हैं कि कितने में दी हुई है हिल्सा फिश। यू वुडंट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू, कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा अगर मैं बताऊंगा, ठीक है। मतलब सस्ती हो ना कि चीज़, तो बोलेंगे ना भाई बहुत ही कम प्राइस है, तो इस तरह से वो बोल रहा है कि आपको विश्वास नहीं होगा इतना कम उसका प्राइस अगर मैं बताऊंगा तो। एंड इन द पैलेस, महल में भी, ठीक है, जो राजा का महल है उसमें भी क्या होता है, द कोर्टियर्स कोड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा। जो दरबारी हैं वो भी कुछ और डिस्कस नहीं करते थे, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में डिस्कस करते थे। योर मेजेस्टी, महाराज को बोल रहे हैं भाई, किंग को, योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कोट इट वॉज, ठीक है। एक दरबारी बोल रहा है कि महाराज आपको देखना चाहिए था कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश आज खरीदी है, ठीक है। दरबारी भी यही बोल रहे हैं, ठीक है। अब वो सीज़न चल रहा है तो सब उसके बारे में ही बात करें, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, स्टॉप इट। अब राजा को जो है गुस्सा आ जाता है, ठीक है। आर यू कोर्टियर और अ फिशरमैन, ही क्या तुम दरबारी हो या मछुआरे हो। द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी, ठीक है। अब दरबारी जो है वो, राजा उस पर चिल्ला के बोलता है तो दरबारी चुप हो जाता है। विद डाउनकास्ट आइज, डाउनकास्ट मतलब नीचे अपनी नज़रें कर लेता है ना। द किंग फेल्ट गिल्टी, आप देख सकते हो ना इसमें, राजा ये जो कोर्टियर है दरबारी है वो नीचे नज़रें करके खड़ा है। द किंग फेल्ट गिल्टी है, राजा को मतलब बुरा लगता है ये चीज़, है ना, कि भाई इतना रूड नहीं होना था, उसको बुरा लग गया कोर्टियर को, दरबारी को, तो वो राजा थोड़ा अब गिल्टी फील कर रहा है, ठीक है। फिर क्या बोलता है वो, राजा बोलता है आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, मैंने अपना मतलब मेरा जो है गुस्सा आ गया था मुझे, ठीक है। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, कि ये जो है सीज़न जो है वो हिल्सा फिश का सीज़न है। एंड नो वन नॉट इवन गोपाल, कि कोई भी, यहाँ तक कि गोपाल भी, कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, कि यहाँ तक कि गोपाल जो है वो भी नहीं रोक पा रहा किसी को भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से, ठीक है। अब कहीं भी जाओ आप तो सिर्फ वही हिल्सा फिश के बारे में बात हो रही है ना, तो वो राजा जो है परेशान हो गया कि भाई यहाँ तक कि गोपाल जैसे हर दरबार में एक होता है ना, एक ख़ास मंत्री, जब बुद्धिमान आदमी वाइज मैन होता है, इस तरह जैसे अकबर के साथ बीरबल था, तो इस तरह से इस राजा के लिए बताया है गोपाल को, है ना। तो बोल रहा है कि भाई कोई भी जो है उनको इस बारे में बात करने से नहीं रोक पा रहा, यहाँ तक कि गोपाल भी, ठीक है। ओके, अब वो गोपाल बोलता है, ओह आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी, कि राजा मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, कि
मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे सामने कोई मतलब मछली की बात ना करे। ओके, वो अब राजा जो है बोलता है देन लेट मी सी यू बाय ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। ठीक है, अब वो राजा बोलता है उसको कि ठीक है, मैं देखना चाहूँगा ना, लेट मी सी यू, कि मैं देखना चाहता हूँ बाय ए ह्यूज हिल्सा फिश, कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदो, ब्रिंग इट टू द पैलेस, महल में लेके आओ, विदाउट एनीवन आस्किंग अ वर्ड अबाउट इट, कि ठीक है, कि कोई एक वर्ड भी इसके बारे में ना बोले, ऐसा मुझे करके दिखाओ। ठीक है, अब मछली की ही सीज़न, हर कोई आदमी बात कर रहा, तो आप भी कोई चीज़ लेके जाओगे तो आपसे पूछने वाले मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जानने वाले हैं, बोल देंगे भाई कहाँ से लाया, क्या प्राइस में दिया, इस तरह से। तो राजा यही बोल रहा है कि मैं देखना चाहूँगा कि एक मछली खरीदो हिल्सा और मेरे पास लेके आओ महल में, और कोई भी उस बारे में बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। गोपाल बोलता है कि मुझे ये चैलेंज जो है क्या है, एक्सेप्ट है। ठीक है, मुझे मंजूर है ये चैलेंज। आगे क्या होता है भाई, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद क्या हो रहा है, देखो ये हिल्स जो ये गोपाल है और ये उनकी वाइफ है, ये वाइफ उनकी क्या बोल रही है, वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन। वो क्या करता है अभी, अपना चेहरा जो है हाफ सेवन कर लेता है, मतलब आधी दाढ़ी बना लेता है, आधा सेव कर लेता है, आधा नहीं करता है। तो उसकी वाइफ पूछ रही है कि भाई तुम्हारा फेस जो है वो आधा सेव किया हुआ क्यों है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश। गोपाल क्या बोल रहा है कि मैं मछली पकड़ने के लिए ड्रेस तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ड्रेसिंग कर रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, वो अपने चेहरे पे राख लगा रहा है, गंदा सा चेहरा बना रहा है। ठीक है, व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विद ऐश। ऐश होती है क्या, राख, कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है ना। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ हुआ क्या है भाई, क्यों आप चेहरे पे अपना राख क्यों लगा रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा। और गोपाल बोलता है भाई मैंने बताया ना कि मैं मछली पकड़ने के लिए मछली ख़रीदने के लिए जो है तैयार हो रहा हूँ। अब वो वाइफ बार बार उनकी पूछती रहेगी, जो करता रहेगा। फिर देखो वो क्या करता है, कपड़े पहन लेता है ऐसे फटे पुराने। ठीक है, तो उसकी वाइफ फिर बोलती है, लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, कि तुम इतने गंदे भद्दे कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते। मेरी सुनो, तुम ऐसे गंदे कपड़े पहन के बाहर नहीं जा सकते। व्हाट आर यू अप टू, कि तुम करने क्या जा रहे हो। ठीक है, अब गोपाल फिर से बोलता है, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, कि मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं वुमन, आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश, कि मैं एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, उसकी वाइफ बोल रही है, इट्स हैपन टू हिम, कि उनको हुआ क्या है, ही इज़ गॉन मैड, पागल हो गया लगता है ना। कोई भी ऐसा करेगा तो पागल ही लगेगा कि भाई मछली खरीदनी है तो वैसे ही जाओ नॉर्मली, कपड़े ऐसे फटे पुराने पहने और आधी दाढ़ी से कर ली, चेहरा उसने राख से भर लिया। ठीक है, तो जैसे किसी को पहचान में ना आया, अच्छा खासा फेस बिगाड़ लिया। तो उसकी वाइफ को स्ट्रेंज लगा, थोड़ा सा हैरान हुई वो। ठीक है, अब आगे क्या होता है, गोपाल बोट द हिल्सा फिश, गोपाल जो है हिल्सा फिश खरीदता है, एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस, और महल की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये गोपाल है, इसके हाथ में फ़िश है। ठीक है, ये ख़रीदता है और महल की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब जो लोग हैं वो हैरानी से देख रहे होते हैं इसको। ठीक है, देखो सारे इसकी तरफ देख रहे हैं। एक लड़का अपनी माँ से पूछ रहा है, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल, कि उस आदमी की तरफ देखो, मजाक क्या नहीं लग रहा, मतलब ऐसे उसका कपड़े वपड़े हैं। ठीक है, कितना फ़नी लग रहा है। फिर और आपस में बात करें लोग, ही मस्ट बी ए मैडमैन, कि पागल लगता है। हर्स आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक, और दूसरा बोल रहा है कि मुझे तो कुछ रहस्यमय आदमी लगता है ना, कि कुछ रहस्य लगता है कि कुछ तो है वही गड़बड़। वैन गोपाल रीच द कोर्ट, अब वो दरबार की तरफ चल देता है, महल में पहुंच जाता है। तो जब वो दरबार में पहुंचता है तो दरबारी उसको रोक लेते हैं। ठीक है, अब एक दरबारी पूछ रहा है, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए।
गोपाल बोलता है आई वॉन्ट टू सी द किंग, कि मुझे राजा से मिलना है, ठीक है। अब दरबारी क्या बोलता है भाई, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, ठीक है, कि तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से दूर हो जाओ। अब गोपाल जो है ऐसे हार मानने वाला है नहीं, क्या करता है गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगता है और नाचने लगता है, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक है ना, गोपाल जो है नाचने लगता है और गाना गाने लगता है। इनसाइड द पैलेस, कि महल के अंदर, द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। राजा जो है ये आवाज़ें सुनता है, ठीक है, राजा तक ये आवाज़ें पहुंचती है। वो ये करने के लिए तो कर रहा था बाहर, तेज़ तेज़ गाना गा रहा था, डांस कर रहा था, ताकि राजा तक ये आवाज़ पहुंचे और उसको अंदर बुला ले, नहीं तो दरबारी उसको बाहर के बाहर ही भेज देते। अब राजा जब ये आवाज़ें सुनेगा तो उसके मन में भी होगा भाई क्या चल रहा है, तो उसको अंदर बुलाने के लिए कहेगा। तो ये उसके एक ट्रिक थी। हाँ, तो उसके राजा को आवाज़ सुनाई देती है, द मैन इज़ क्रेजी, कि आदमी जो है वो पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस, कि इसको बाहर फेंक दो। तभी गोपाल की आवाज़ आती है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे अंदर आने दो। अब राजा जब ये आवाज़ें सुनता है तो क्या बोलता है भाई, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, कि उस आदमी को जल्दी से मेरे पास लेके आओ। दरबारी को बोलता है, यस श्योर मेजेस्टी, की जी महाराज, है ना। गोपाल वॉज ब्रोट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया गया। अब एक दरबारी ने उसको पहचान लिया, तो क्या बोलता है, इट्स गोपाल, कि ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, कि आपस में दरबारी बात कर रहे हैं भाई, कि आदमी जो है ना, ये मतलब गोपाल जो है, इसने उसका दिमाग ख़राब हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, दूसरा बोल रहा है कि मुझे लगता है इसका कोई मजाक है इसमें ना, जैसे मजाक करता रहता है, उनमें से कोई इसका एक मजाक है। अब राजा बोलता है, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, कि तुम इतने भद्दे तरीके से कपड़े क्यों पहने हुए हैं तुमने। अब गोपाल बोलता है, योर मेजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, क्या मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हो, है ना। गोपाल जो है राजा को याद दिलाता है कि भाई राजा, मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हो। राजा बोलता है, फॉरगॉटन समथिंग, कि कुछ भूल रहा हूँ, याद करता है क्या बोल रहा है। अब गोपाल जो है वो बोलता है, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, कि मतलब ये हैरानी की बात थी कि किसी ने भी, मतलब किसी का भी इंटरेस्ट हिल्सा फिश में नहीं दिखा आज। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, कि बाज़ार से लेके और महल तक किसी का भी इंटरेस्ट उस मछली में नहीं दिखा। नोट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, की एक भी आदमी ने हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। तो इसका मतलब क्या है भाई, उसने कपड़े क्यों पहने थे ये, ताकि ध्यान उसकी तरफ ही रहे, मछली की तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए और ना कोई पूछे। ऐसा ही होगा जब ऐसा मतलब दो चीज़ एक साथ हैं ना, कि मछली भी है जिसका सीज़न चल रहा है, लेकिन उससे ध्यान भटकाने के लिए उसने खुद को ऐसा ड्रेसअप किया था कि लोगों का ध्यान सिर्फ उसकी तरफ हो और मछली पे उनका ध्यान नहीं जाए, ठीक है। तो ये उसकी ट्रिक थी, उसको चैलेंज दिया था राजा ने। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर, तभी राजा को याद आता है, द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, जो चैलेंज उसने गोपाल को दिया था। हाँ हाँ, राजा हंस रहा है। वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, कि बहुत अच्छे गोपाल, बधाई हो, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, कि तुमने फिर से असंभव को संभव कर दिया, ठीक है। तो ये उसकी एक ट्रिक थी। अब गोपाल जो है खुश हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे एक राजा और मंत्री की कहानी होती है, अकबर बीरबल की, और भी आपको मिल जाएंगे ऐसे। तो इस तरह से ही ये एक गोपाल की और राजा की कहानी है। तो ये स्टोरी क्या थी भाई, गोपाल एंड